You know who is the best people in the universe? My retainer didn't fit. भाई आप लोग ने नहीं होता होगा भाई मुझसे दांत में फर्क आ सकता है. Everything hurt. I don't like it at all. Welcome back to Bushel Loves to Talk. My previous video I shared about my braces journey from premolars extraction to every tiny painful detail of my braces experience. So today it is part 3 of my braces journey series and we are going to have a full-blown chat about retainers. I know. The last time I uploaded a video, it was a month ago. I bet anyone was even waiting. Fans लोग भी ना DM करके पूछते हैं, you know, कब upload करोगे videos and all. But jokes on you, cause I crossed 100 subscribers. I don't think कोई भी इतना खुश हुआ होगा 100 सब्सक्राइबर क्रॉस किया करके. बट 100 भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है. सिस्टम पार देंगे. गाइस मैंने उस दिन सुना कि YouTube में अगर तुमको मोनेटाइज करना है अपना चैनल, यू हैव टू क्रॉस 20 मिलियन व्यूज. एक्सक्यूज मी, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी. मेरा ये चैनल का नहीं होने वाला. मैं समझ गई. Wait. There is a silver lining to this delay. You see, I got my braces off on 28 June, the last time I filmed a video. Today is August 6. I wanted to give myself some time, live with a retainer, feel the experience so that I can come and tell you everything. So thoughtful. Not some sugar-coated story, but the real retainer struggle saga. For those who are wondering what is a retainer is a custom dental appliance designed to maintain the position of your teeth after orthodontic treatment. Retainer is something you wear after braces to keep your teeth in place so they don't move back. So a retainer is like a clingy axe of your teeth, never letting them move on. So there are various types of retainers and these are the retainers most commonly used. Holy retainer, more like a holy shit. चीज को कौन लगाएगा? You know. Fixed bonded retainer. So ये वाला जो है आपके दांतों के पीछे रहेगा, but ये वाला जल्दी टूट जाता है मैंने सुना है, साफ करने में भी दिक्कत है. And this one is a clear plastic retainer and this is the most recommended one and this is the one I use. Story time. So I went to get my braces removed. My ortho was literally pulling the brackets one by one and the pressure felt like he was going to break off my teeth. I was gripping the chair and I was like, hello, is this safe? Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? But within 10 minutes, voila, the brackets were off and he did all that cleaning stuff and all.
For retainers, they stuffed this clay-like thing inside your mouth to take measurements. You have to sit still with that thing in your mouth for like 2 to 3 minutes for each row of teeth. It's all about balance and real love. And you know guys, जब मैंने first मेरा braces खोला, the first thought was, क्या मेरा दांत हमेशा से इतना बड़ा था? I mean, इतना बड़ा? In all these years मैं braces में थी and अचानक से my teeth feel so नंगा यार. एंड यू नो मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ब्रेसेस खोला आई वॉज वेरी केयरफुल. लाइक मुझे लगता था कि इवन मैं अगर पानी भी पीती मेरा दांत हिल जाता. लाइक इट फेल सो सेंसिटिव टू मी. आई फील लाइक कि हिल जाएगा भाई. इवन मैं खाना खाती थी जब या फिर कुछ होता था आई वॉज always so anxious about this and so numb. So by 5 p.m. I went to collect my retainers and you won't believe what happened. My retainer didn't fit. It wasn't fully going inside and there was a gap. I know some of you might say push it in, chew it on, make it fit. Trust me, I tried, I chewed, I pressed. That was the limit. It wasn't going any deeper. And here is another thing. My lower retainer had this clay white stain and it refused to leave. And my retainer looked like I had grain of rice stuck in my retainer forever. Let's talk about how I felt. आप सबको तो लग रहा होगा ओ फाइनली ब्रेसेस हट गए. ओ माय गॉड शी इज सो फ्री. सब अभी अच्छे से खा सकते हो, गा सकती हो, नाच सकती हो, सब कुछ तो कर सकते हो तुम. कुत्ता पालो पर गलत फहमी दे. My mouth went into a shock mode. She was not used to this new change and she was throwing a tantrum. It was the same suffocating feeling I felt when I first got my braces, even worse. I was literally choking on my tongue. Swallowing saliva became a nightmare. My tongue was so confused, like, where do I rest? My throat was choking me, my head was pounding, my face was stiff, my eyes hurt. Everything felt like it was under pressure. The retainer installation gave me the worst headache of my life and I was struggling to swallow on my own saliva every single time. ना मैं बैठ सकती थी, ना मैं उठ सकती थी. I was just praying that ये रात बीत जाए and सुबह होकर सब ठीक हो जाए भगवान please. But guess what? It did not. I was stuck in this choking sensation for weeks until my mouth got used to it slowly. You know, काफ़ी अजीब लगता था because I'm brushing off this slippery surface other than fences I had for 2 years. It was weird, it was strange and yeah, strange. Now let's talk about speaking. Bro, when I used to speak, I was sounding like a lisping stutterer. भाई पूरा तुतला जैसा बात करती थी मैं. तुतला ये वो जो एक सीन है ना, वो क्या बोलते हैं, वो तुतला वाला, वो बाबू भैया वाला सीन जो हेरा फेरी में होता है, वैसा एग्जैक्टली. I couldn't pronounce certain words or articulate properly. I know the retainers look thin, but it was thick enough to block your tongue's movement. And every time I tried to speak, my tongue kept hitting the surface of the retainer and my words came out all jumbled up. स्ट्रगल किया है भाई, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने भाई. मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही. अगर मैं बोलने का चाहती भी हूँ मैं, पर निकल नहीं रहा ठीक से. इट वॉज सो एम्बेरसिंग. लाइक मुझे इतना एंग्जाइटी होने लगा था कि भाई मैं अभी बोलूँगी ये वर्ड, अगर ऐसे तुतली ना हो गया, अगर लोग तो नहीं समझ पाएंगे ना कि मेरा ऐसा अंदर से प्रॉब्लम हो रहा है. मेरा ब्रेसेस लगा था, अभी रिटेनर लगा, लोग तो नहीं समझेंगे. लोग तो सोचेंगे कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं ऐसे ही तुतली बहुत बहुत स्ट्रगल किया है भाई, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने. बट नाउ दैट अभी 1 महीना हो चुका है एंड आई थिंक माई स्पीच हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. बट ऐसे नहीं बोल सकते 100%. एंड ये वाला जो है, ये वाला फैक्टर जो है, मैं ठीक से बात नहीं बोल पाती, कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं होता. ये वाला मैं अगर ज़ोर से बात करूँ
तब ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। मैं अभी तो मैंने रिटेनर नहीं लगाया इसीलिए मैं ठीक से बात कर पा रही हूँ, पर अगर मैं रिटेनर लगाती तो मैं ठीक से ऐसे बोल भी नहीं पाती, मैं खुल के नहीं बोल पाती, मैं ऊंची आवाज़ से नहीं बोल पाती। लाइक टू मच स्ट्रगल भाई, आप लोग नहीं समझ। तभी मैं अगर मिली तो आप लोग सोचना मैं ऐसे बात करती हूँ, मेरे अंदर दिक्कत है। ओके गाइस, दिक्कत है। माई स्पीच जस्ट कोलैप्सेस एंड मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। मैं ऐसे ही रहूँगी, ये ना कभी ठीक होगा, ऐसे ही रहेगा। मुझे रिटेनर खोल के ही बात करना पड़ेगा, पर मुझे रिटेनर लगाना भी है सारा दिन। फंस गया। एंड नाउ फॉर डेली लाइफ। For God's sake, bhai, I was more comfortable with braces than this retainer thing, I swear. And the main problem is that कि मैं 1-2 मिनट में खाना ठूसती रहती हूँ guys. And ये रिटेनर लगाने के चक्कर में it was like a jail. It was like an invisible jail for me. वेट, आप मेरा दुख ठीक से समझ नहीं पा रहे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बोलती हूँ। सपोज आप रास्ते में जा रहे हो एंड आपके साथ आपकी दोस्त है एंड आपकी दोस्त ने ऑफ़र किया कि हाय चिप्स खाना है, एंड मैं चिप्स उठाने जाती हूँ एंड मुंह के अंदर डालने जाती हूँ। मेरा तो रिटेनर है। मैं कैसे खा सकती हूँ? बहुत लोग बोलोगे कि खोल कर खा लो ना। खोल कर खा लो? सीरियसली? नहीं, रुको। आप चाहते हो कि मैं अभी पब्लिक में हाथ डालकर ये चीज़ को खोलूं एंड मैं खाऊं एंड खाकर मैं फिर से लगाऊं एंड ये मत भूले कि खाना अटके रहता है एंड वो खाना अटके रहने के अंदर मैं फिर से रिटेनर लगाऊं एंड पानी से भी धो। was a torture. It was a chore for me. हर रोज़ हर दिन मेरा अभी फ्रीडम नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम अभी उठ कर खा सकता। हमेशा अभी मुझे उठना है तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, फिर पानी में रखना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, फिर मेरा मुंह धोकर फिर से मैं लगाना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन, मुझे ये सब नहीं होता। एंड मुझे लगता है कि ये रिटेनर के चक्कर में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फुल टाइम जॉब मिल चुका है एंड अभी मैं सारा दिन रिटेनर ही साफ़ करती रहती हूँ एंड दिन भर ही साफ़ करना पड़ता है एंड रिटेनर मुझे हर दिन साफ़ करना पड़ता है। एंड साफ़ करने से मतलब है कि रिटेनर का स्टेन ठीक से जाता नहीं है, मुझे ब्रश करना पड़ता है, ठीक है, मुझे ब्रश करना पड़ता है एंड वो ब्रश करने में मेरा दिन चला जाता है। एंड द मेन प्रॉब्लम कि मैं एनी टाइम में खाना नहीं खा पा रही, ये मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एंड दिक्कत इसके लिए भी है कि ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हाँ ऑफकोर्स ये खोल कर निकाल कर खा लो। आई नो मैं भी करती हूँ सैंडविच खोल कर निकाल के, बट मेन प्रॉब्लम है इसकी मैं लोगों के सामने तो नहीं कर सकती ना, मैं लोगों के सामने नहीं कर सकती। आप नहीं समझो क्या जानना है ना क्यों बोली हूँ? क्योंकि मैं जब रिटेनर निकालती हूँ तब मेरे मुंह से सलाइवा खींचकर निकलता है। आई बेट आपको वो देखना नहीं है। इट्स ग्रोस, इट्स डिस्गस्टिंग। डू यू वांट टू सी? आपको देखना है? नहीं देखना ना, सेम मुझे भी नहीं देखना। दिस होल रिटेनर मेंटेनेंस थिंग, इट वाज एक्सॉस्टिंग, इट इज़ ड्रेनिंग। लाइक नहीं होगा भाई मुझसे इतना मेंटेनेंस नहीं होगा भाई रोज़ का। हफ्ते में एक बार फिर भी ठीक है, लाइक रोज़ का होने भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। अब मेनली मेरा खाने की वजह से ही प्रॉब्लम है ज़्यादा। एंड इसके मैं रिटेनर खोलूँ तो मुझे कंटेनर में भी घुसा कर भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो मैं ब्रेसेस में थी भाई, जब मर्जी में खा सकते। अच्छा ठीक है ब्रश करने में दिक्कत है तो क्या हुआ, मैं मन का मालिक थी ना। अभी देखो it feels like a lifetime imprisonment. I'm in an invisible cage forever. सो आज मैं सिखाने जा रही हूँ हाउ टू वेयर एंड रिमूव योर रिटेनर्स, ठीक है। सो पहले आप देख लीजिए कि कैसे दिखते हैं। सो फर्स्ट ऊपर वाला ऐसे हाथ से डालकर प्रेस कर देना है
इसके बाद ही उसके बाद नीचे वाला या फिर नीचे भी ऐसे प्रेस करके सो ये रिटेनर जो है आपके मेजरमेंट आपके दांत के अकॉर्डिंग ही फिट आ जाता है. सो एज यू कैन सी कि प्रिटी मच ऐसा कुछ लगता नहीं है मैंने कुछ लगाया अनलेस आप मेरे सामने मेरे मुंह के सामने हो. एंड थोड़ा सा निकला हुआ है नीचे, आपको गैप दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा बट दिखा दूँगी मैं आपको बाद में. सो अभी हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं रिटेनर को. तो ऐसे ज़ोरों से प्रेस करके नीचे का मॉलर में फिर ऐसा निकलता है. सेम विथ नीचे वाला लोअर टीथ ऐसे प्रेस करके निकलना है. पर एज यू कैन सी कि सलाइवा निकल रहा है. तो सो हाउ टू अवॉइड इट. सो अवॉइड करने के लिए आपको पी लेना है कि पानी. ये मेरा मास्टर ट्रिक है, ठीक है. तो ऐसे गर्गल करने के बाद आपका सलाइवा क्लीन हो जाएगा. फिर ऐसे प्रेस करके निकालने से ऐसे आपका सलाइवा खींच कर नहीं निकलेगा. सो इट विल बी लेस ग्रोस एंड डिस्गस्टिंग ऑफ कोर्स. उप्स. सो अभी आपको ऐसे ही मेरे गलतियों से सीख लीजिएगा. सो अभी नो सलाइवा एंड ही. सो आप देख सकते हैं मेरा दांत कैसा है, अभी अलाइंड है काफ़ी. सो थोड़ा बहुत डिफरेंस है विथ रिटेनर एंड विदाउट इट, पर उतना नहीं देख सकते. अपने मन पसंदीदा ब्रश का प्रयोग करें, उसके साथ आपके पसंदीदा हैंड वॉश का प्रयोग करें. ये देखने में तो काफ़ी इजी लग रहा है कि कितना इजीली साफ़ हो रहा है, पर उतना इजी है नहीं. बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये प्लेग एंड टार्टर रिमूव करने में. आप ये वाला टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग. ये इजी और फास्ट होता है. बट ब्रश रगड़ना इस कंपलसरी, नहीं तो कुछ भी साफ़ नहीं होगा आपका. सो आफ्टर वॉशिंग में सॉल्ट वाटर में रखती हूँ अपना रिटेनर्स को फॉर 5 to 10 मिनट्स ताकि डिसइंफेक्ट हो. एंड यू कैन सी दैट मेरा रिटेनर्स जो है वो फुली अंदर नहीं जाता. ये मोस्टली वो केस में होता है जब तुम बहुत दिनों बाद रिटेनर्स लगाते हो एंड तुम्हारा रिटेनर्स फिट नहीं होता. बट इन माई केस मेरा पहले से ऐसा था एंड दिस इज़ द लिमिट एंड और अंदर नहीं जाता. सो या $1 million question. How long do I need to wear this retainer? My ortho said 2 years. Yes, sir, 2 years in this life imprisonment. But guys, please be serious. जब रिटेनर का बात आता है, all this struggle जो बेसिस में आपने किया, इतना दुख, शोर शराबा एंड ऑल, इतना जो आपने झेला, all will be gone if you don't wear retainer regularly. ठीक है. एंड यू नो जब भी मैं समटाइम्स में 1-2 घंटे 3-4 so when I come back and wear my retainer after not wearing it for some times, my teeth feels tight. My retainers feel tight. That means कि आपके दांत हिला. Even in an hour आपका दांत में फ़र्क आ सकता है. That's why it feels tight, क्योंकि आपकी पोजीशन से वो थोड़ा हिल गया है. So no problem, आप फिर से रिटेनर लगा सकते हो and then the teeth will be shifted at the initial position. So no worries. So just that कि आप रिटेनर लगा के रखिए जब तक बोला गया है. Although मैंने अभी ऐसा देखा है कि मेरे ऑर्थो ने बोला कि 2 years लगाने के लिए, बट मैंने देखा है बहुत लोगों को कि ऐसा बहुत सालों बाद जब नहीं लगाते तो उन लोगों का दांत शिफ्ट हो जाता है. तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं लगा लेती हूँ, ठीक है 1 साल 2 साल में लगा लेती हूँ. बट देन मैं रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई विल वेयर माई रिटेनर एट नाइट ओनली. सो स्मार्ट. ये मैंने एक्चुअली यूट्यूब में देखा है कि ऑर्थो बोलते हैं कि यू हैव टू वेयर यू रिटेनर लाइक फॉर एवर. सो आई डोंट नो मेरे ऑर्थो ने क्यों बोला, पर मैं तो लगाने वाली हूँ हमेशा के लिए. बट जस्ट स्टार्टिंग का कुछ ईयर्स लाइक 1 साल जो बोला, 1 साल में लगाऊंगी ज़रूर. बट उसके बाद मैं आई थिंक मैं रात को ही लगाऊंगी मोस्टली. देखते हैं कैसे जाते हैं. मैं ठीक से बोलने, अब ये मुझसे इन्फ्लुएंस मत होना फिर बोलना कि मेरी गलती है. ठीक है, आप डिसीजन आप लो, मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ. सो जस्ट लेट्स सी. सो वही है. सो लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल गाइज कि आप जो सोचते हो वो कभी होता नहीं है. ठीक है, जो मेरे साथ तो हमेशा ख़राबी होते हैं वैसे. तो यही है कि ऐसे नहीं बोल सकते कि हा मतलब मेरे एक्सपीरियंस हा कि ब्रेसेस हट गया, अभी रिटेनर लगाया तो मस्ती है पानी. ऐसा नहीं होगा. सो लाइक ये तो झेलना पड़ेगा मुझे. एज आई सेड कि स्टार्टिंग का कुछ डेज में द suffocating feeling, that was the worst. Like me actually it was more terrible than the experience I felt throughout my braces journey. Like बहुत गंदा feeling था. ठीक है.
सो वही है, सब लास्ट में सब अच्छा होता है ना, लास्ट में इट all gets better. Like, I hope this video gave you some true insight, not some fake fancy expectation on it. That's why I'm not taking it. If you are going through braces journey, or you are going to get your braces off, or you are going to start a braces journey, then brace yourself up. And yeah, you can watch my video. If you are new to this channel, you can watch my other 2 videos. I will give my link in my description box. And अभी कितना अजीब लगता है, लाइक कुछ साल पहले ही मेरा कितना डिफरेंट था, एंड time just changes everything. And when I was going through my braces journey, like I couldn't spot any differences on my face. Like every month, every step, it was improving, or there was also some changes, like even worse. Like when I actually go through my videos and I actually see that ऐसा दिखती थी क्या, like my face was constantly changing through all this period, and I couldn't even spot the difference. कि मेरा भी braces हट चुका है, I can point out every flaws, like अभी ऐसा था, अभी ऐसा है, and still अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दांत ठीक से भाई ह्यूमन लोग ऐसे होते हैं भाई, इतना 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 लालची है ना ह्यूमन, मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ भी चीज़ से खुश नहीं होगा। प्राइम एग्जांपल मैं हूँ। मैं यही है कि अभी लगता है फ्यू कितना कुछ झेला भाई, अभी फाइनली आई एम हेयर विद ब्रेसेस। कब मैं पहले सोचती थी कि ब्रेसेस लगाऊंगी, ब्रेसेस लगा लिया, एंड भाई मैंने ब्रेसेस लगा भी लिया एंड निकाल भी लिया। सो वही है, एंड वही मैं बोलना चाहूँगी आप सबको कि आप अगर ब्रेसेस में अगेन कि आप अगर ब्रेसेस लगाना चाहते हो तो गो फॉर इट भाई, गो फॉर इट एंड लगा लो। एंड आप लोगों का भी ऑफकोर्स बहुत ऐसे लो फील हो रहा होगा, बिकॉज हर किसी का ही होता है, जब तुम इन द प्रोसेस में होते हो तो ऑफकोर्स तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक मोमेंट में आप सब ठीक हो जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड थोड़ा थोड़ा करके इट विल गेट बेटर। सो या जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। एंड अगर आपको कुछ कोई बोले या फिर कुछ लोगों के कमेंट से बहुत आ गया मैं तो ऐसे देखती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले लव योर सेल्फ। आई स्वेयर मैं जब ब्रेसेस स्टार्टिंग में जो ऐसा था, मुझे भी पहले ब्रेसेस पसंद नहीं जाते, क्या लोगों को देखती थी मैं हमेशा सोचती कैसी लग रही हूँ भाई, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, एक छी यार ये कैसा फेस है। और मैं जब लोग लगाते थे तब मैं सोचती नहीं थी ऐसा, पर मैं खुद की बात में जब आई तब लगता छी यार मैं कैसी लग रही हूँ ये वो। बट ये चीज़ ना कब अच्छा होने लगा, जब मैंने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट देखा, तब ऐसे मुझे ऐसा होप फील हुआ कि वाह चेंज हो रहा है। सो जब मैंने खुद को ऐसे पसंद करने लगा, खुद को आई स्टार्टेड लाइकिंग माई सेल्फ इन ब्रेसेस, देन लोग क्या बोलते हैं इट डिडंट मैटर मच। लाइक ऑफकोर्स लोग जो है, एंड लोगों का क्या है भाई, उन लोगों को समझ आता नहीं ये सब, एंड ऑफकोर्स दे आर न्यू टू दिस थिंग्स, एंड उन लोगों को पता नहीं होता बेसिस ये सब क्या होता है एंड ऑल। एंड ऑफकोर्स उसको उन लोगों को तो बस प्रेजेंट मोमेंट से वो लोग जजमेंट देंगे ना। सो आपको उस चीज़ से आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम जानते हो आपका अपना प्रोसीजर कि कैसा होगा, ऐसे ही होता है, ऐसे ये चीज़ में, ये जर्नी में आपको ख़राब दिखना है ही। इसका मेन पर्पस है कि आपको उधर से आप अच्छा दिखने जाओगे, ठीक है। सो बी हैप्पी भाई, इतना डिप्रेस मत हो, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी ओके एट द एंड। एंड प्राइम एग्जाम्पल, so guys don't forget to like and subscribe to my channel। and as I said कि मैं अपना टाइम लैप्स वीडियो डालूंगी, like starting जब extraction से and last तक। so stay tuned and please subscribe and share it to your friends। and if you are new to this channel and watch my video, please don't forget to like and subscribe। and before I wrap up this video, let's do a little speech test with and without retainers। and action। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। तेरा शरीर में इतना खून नहीं जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। तेरा शरीर में इतना खून नहीं जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। हाय गाइस, सो मेरा रिटेनर लग चुका है, एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा घटिया फीलिंग हो रहा है। बात भी नहीं कर पा रही ठीक से। देयर इज लिप्स, okay, there are some alphabets that I can't pronounce at all. As you can see, I have trouble speaking. Nausea, and first of all, after removing my braces, the first thing I noticed that I am choking. Doesn't feel good at all.
like I'm feeling nausea, I'm feeling head hurts, everything hurts. I don't like it at all. Oh God, please let it go. I don't like it at all. Please take this away. If I wake up tomorrow, I want these feelings to go. हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का